مردم شماری کے لیے اٹھتی آوازیں بالآخر رنگ لے آئیں، آخری معاملہ بھی حل ہو گیا۔ آرمی چیف نے مردم شماری کے لیے پاک فوج کے 2 لاکھ جوان فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ مردم شماری کا آغاز 15 مارچ سے ہوگا۔ دو مراحل میں ہونے والی مردم شماری میں فوج کی تعیناتی صوبوں کی ترجیح پر ہوگی۔ آخری مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی اور اس وقت ملک کی مجموعی آبادی 13 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل تھی۔ اب ملک کی آبادی 18 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ قومی اسمبلی کا جھگڑا ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا کہ ایک اور پنڈورا باکس کھل گیا۔ شہریار آفریدی کی پارلیمنٹ رکنیت معطل تھی، وہ ایوان میں کیسے آئے؟ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو کیوں پتہ نہیں چل سکا؟ میڈیا پر صفائیاں دینے لگے۔ معطل رکن شہریار آفریدی کی ایوان میں موجودگی کا ذمہ دار کون؟ کیا کسی کی پکڑ ہوگی؟ شہریار آفریدی کی معطلی کے معاملے پر شاہ محمود قریشی ناراض۔ اگر رکنیت معطل کی گئی تو پیر کو کوئی اجلاس نہیں ہوگا، وارننگ بھی دے ڈالی۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ کس نے شروع کیا؟ تھپڑ کس نے مارا؟ پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ شاہد خاقان عباسی بینچوں کی طرف کیوں آئے؟ اپوزیشن کا سوال۔ شیخ رشید نے ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار اسپیکر کو قرار دے دیا۔ ریڈ لائنز طے ہونی چاہیے، نوید قمر کی تجویز۔ قومی اسمبلی کے اثرات خیبر پختونخوا اسمبلی تک جا پہنچے۔ آج پھر ہنگامہ آرائی، تحریک انصاف اور نون لیگ کے اراکین کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ اجلاس 20 فروری تک ملتوی۔ وزیر مملکت برائے نجکاری محمد زبیر کو نیا گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان، اعلان آئندہ 24 گھنٹے میں متوقع۔ اسحاق ڈار کے وکیل شاہد حامد نے بیان حلفی کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ پہلے سے لکھی تحریر پر زبردستی دستخط کرائے گئے۔ مجسٹریٹ کو بیان ریکارڈ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اسحاق ڈار کو پہلے معافی ملی، اعترافی بیان بعد میں ریکارڈ ہوا۔ پیناما کیس میں دلائل۔ بیان حلفی کاغذ کا ٹکڑا نہیں، شواہد کا حصہ ہے جس پر کبھی کارروائی نہیں ہوئی۔ نیب ریفرنس نامکمل اور ہائی کورٹ کا مقدمہ تکنیکی بنیادوں پر ختم ہوا۔ پہلے معافی اور پھر اعترافی بیان کی بہت اہمیت ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں نیب کو اپیل دائر کرنی چاہیے تھی۔ ججز کے ریمارکس، وراثتی جائیداد کی تقسیم پیر تک مہلت دے دی۔ جو اب چیز سامنے آئی یہ ہے کہ اسحاق ڈار ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے، اور جو وہ کیس تھا، یہ یاد رکھیں، اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کو اپروور بن کے سٹیٹمنٹ دی تھی۔ عمران خان نے توپوں کا رخ اسحاق ڈار کی جانب موڑ دیا۔ کہا کہ نواز شریف نے کیس ختم کرنے کے لیے اپنا چیئرمین نیب لگایا۔ سپریم کورٹ میں کیس نہ ہوتا تو یہ چیزیں سامنے نہ آتی۔ شیخ رشید نے قطر میں پاکستانی سفیر کو وزیر اعظم نواز شریف کا ذاتی ملازم قرار دے دیا۔ اتنے خط شہزادہ سلیم نے انارکلی کو بھی نہیں لکھے تھے، شیخ رشید کا طنز۔ ایسے خط تو شہزادہ سلیم نے بھی انارکلی کو نہیں لکھے تھے جو قطری نے نواز شریف کو لکھے ہیں۔ پاناما سکینڈل دلدل ثابت ہو رہا ہے جس سے حکمران خاندان کا نکلنا ناممکن ہے۔ حلال کمائی سے کوئی 52 کروڑ کے تحفے نہیں دیتا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق۔ پاکستان بدل رہا ہے لیکن بعض سیاستدانوں کی سوچ نہیں بدلی۔ شکست خوردہ عناصر ہوش کے ناخن لیں۔ عوام الزامات لگانے والوں کو مسترد کر چکے ہیں۔ شہباز شریف بھی برس پڑے۔
मुल्क से करप्शन खत्म करने में कोई संजीदा नहीं, हर शहरी आवाज उठाए, खामोश पाकिस्तानी नहीं बोलेगा तो इंतशार जारी रहेगा। चौधरी निसार का तकरीब से खिताब। अदालती डेडलाइन गुजर गई, लेकिन सिंध हुकूमत ने मुशीर कानून मुर्तजा वहाब को ओहदे से नहीं हटाया। एडवोकेट जनरल ने नोटिफिकेशन आज ही जारी करने की यकीन दहानी करा दी। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में गिरफ्तार MQM के रहनुमा कंवर नवीद जमील जमानत पर जेल से रिहा। झूठे मुकदमात से डराया नहीं जा सकता, कंवर नवीद की रिहाई से हौसला बढ़ा। डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तकबिल का दारोमदार साइंस और रियाजी में महारत पर है। नई नस्ल को जदीद उलूम से आरास्ता किया जाएगा, यही मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद की अदालत में हज करप्शन केस की समाअत। मुलजिम अहमद फैज को 30 बरस कैद की सजा, 5 करोड़ रुपए जुर्माना। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। मज़ार कायद की सिक्योरिटी पर इजहार तशवीश। मज़ार कायद के अतराफ बुलंद इमारतों को गिराने का हुक्म। 10 रुपए एंट्री फीस भी खत्म की जाए, मेयर कराची का मुतालिबा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा इरिगेशन के डायरेक्टर समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम। जजिस के साथ तल्ख कलामी के बाद वकला अदालत के अंदर भी लड़ पड़े। 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई, एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। बरतानवी वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात आज होगी। ट्रेजा में कहती हैं अगर अमरीका ने गिरफ्तार अफराद पर वाटर बोर्डिंग का हरबा आजमाया तो बरतानिया मालूमात का तबादला रोक सकता है। मुल्क के बड़ाई इलाकों में कहीं बर्फबारी जारी तो कहीं थम गई। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर इलाकों से जमीनी और फजाई राबिता ताहाल मुनक़ता। वादी नलतर में बर्फ में फंसे चीते को महकमा वाइल्ड लाइफ ने बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाज जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर मुमलिकत बराए निशकारी मोहम्मद जुबैर को नया गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है और इस हवाले से ऐलान भी आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के है। गवर्नर सिंध की तैनाती से मुतालिक ही बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है। हमारी सीनियर एंकर पर्सन है आसमा शिराजी। उनसे आसमा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुस्लिम लीग नून में और भी बहुत से सीनियर रहनुमा मौजूद है जिन्हें नॉमिनेट किया जा सकता था गवर्नर सिंध के लिए, लेकिन आप क्या समझती हैं, क्या वजह है कि मोहम्मद जुबैर ही को चुना गया? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत दिन लगाए इस गौर फिक्र में कि किसको बनाया जाए। ममनून हुसैन साहब के भी कुछ दोस्त थे, फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब का नाम आ रहा था, निहाल हाशमी साहब का नाम आ रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम आ रहा था, मोहम्मद जुबैर साहब का नाम आ रहा था। लेकिन PMLN को अब एक बहुत ही एक्टिव गवर्नर चाहिए सिंध के अंदर, क्योंकि नून लीग ने ये फैसला किया है कि इसी साल के जो शुरू हुआ है इसमें वो पूरी कोशिश करेंगे कि सिंध के अंदर जो अपनी सियासी तंजीम है उसको मजबूत करें। सो उसके लिए उनको एक एक्टिव और जाहिर है कि उर्दू स्पीकिंग और एक पढ़ा लिखा फेस चाहिए था। तो अब तक की जो इत्तलात हैं कि इस बात का इम्कान है कि फैसला कर लिया गया है कि गवर्नर सिंह जो है वो जुबैर साहब होंगे। और इस सिलसिले में जाहिर है कि PMLN की क़यादत ने बहुत देर तक मुशावरत की है, बहुत से लोगों की राय इसमें ली है, एक शख्सियत के हवाले से नहीं, लेकिन जो उनको एक रोल चाहिए गवर्नर सिंध के तौर पे। वो आपको याद होगा कुछ दिन पहले साद रफीक साहब ने इशारा दिया था कि हम सिंध आने वाले हैं और वहाँ पे तंजीम साजी करने वाले हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने काफी दिन लगाए थे। तो बहुत ही कवी इम्कान है कि जुबैर साहब जो हैं वो वहाँ की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक वहाँ पे गवर्नर बनाए जाएंगे और गवर्नर हाउस को बहुत एक्टिव रखा जाएगा ताकि तंजीम साजी भी हो सके 2018 के इलेक्शन से पहले। और जितनी रिक्वायरमेंट्स इससे मुतालिक थी वो जुबैर साहब के ऊपर थी। हमारी इत्तला के मुताबिक MKM को भी कोई खास एतराज उनके नाम पे नहीं है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात फारूक सत्तार साहब की 1-2 दिन में उसका इम्कान है। मंडे से
जो इजलास शुरू होगा उसके दौरान। तो देखना यही है कि MKM अपने किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने लेके आती है। अब तक इस बात का कवी इम्कान है कि ज़ुबैर साहब को जो है वो हतमी तौर पर गवर्नर सिंध लगा दिया जाएगा। तो आसमा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को गवर्नर लगाया जाता है तो वजारत प्राइवेटाइजेशन तो खाली हो जाएगी। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि PTI वालों की भी सुन ली गई हो, चूंकि उन्होंने ही हाल ही में कहा था कि दानियाल अजीज को भी कोई ओहदा मिलने वाला है और ये ओहदा इसीलिए खाली कराया गया हो कि दानियाल अजीज को ये मिनिस्ट्री दे दी जाए? नहीं, इस बारे में कोई इत्तला अभी फिलहाल नहीं है और ये इस बारे में मेरा ख्याल है कि PMLN के सर्कल्स के अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं है। इस वक्त एक बड़ा फैसला सिंध में था और सिंध में बहुत सारे लोगों के बावजूद PMLN के पास कोई भी एक बेहतर शख्सियत नहीं थी कि उनको गवर्नर सिंध लगाया जाए, सिवाय के ज़ुबैर साहब के। मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी एक बहुत उनके सामने वो हो सकते थे, लेकिन क्या वजूहात हुई है, ममनून हुसैन साहब ने उनको अप्रूव नहीं किया या कोई और वजूहात हुई है, उनका नाम फिर इसमें से निकाला गया है। और इसी तरह से निहाल हाशमी साहब भी बहुत एक्टिव थे, बहुत लॉबिंग खुद ममनून हुसैन साहब अपने एक पुराने दरीना दोस्त की भी कर रहे थे, लेकिन उनको भी नहीं गवर्नर सिंध बनाया गया। जाहिर है कि ज़ुबैर साहब का मीडिया सेल के हवाले से जो मरियम साहिबा का है या जो उसमें उनका बहुत एक्टिव रोल है और वो बहुत एक्टिवली टॉक शोज में भी और पार्टी के जितने भी चीजें उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत इस बात का इम्कान है कि सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर भी उनके वोट बहुत ज्यादा थे कि चीजों को सेंस, जो पॉलिटिकल सेंस है उसके साथ साथ पढ़ा लिखा और उर्दू स्पीकिंग होना भी बहुत जरूरी है। सही। आसमा शिराजी, आपने अपना तज्जिया शेयर किया गवर्नर सिंध के मामले के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं मरदमशुमारी की। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कौमी मरदमशुमारी के लिए फौज की तरफ से मुआवनत के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मरदमशुमारी की बराह रास्त और बिलवास्ता जिम्मेदारी के लिए फोर्सेस के 2 लाख एहलकार और अफसर खिदमात सर अंजाम देंगे, जबकि मुल्क में जारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी चलते रहेंगे। इसी बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मरदमशुमारी के लिए उठती आवाजें बिल आखिर रंग ले आईं। मामले में फौज की अदम दस्तयाबी का मामला भी हल हो गया। इसके साथ ही कमोबेश 18 बरस के बाद मुल्क में मरदमशुमारी होने जा रही है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की तरफ से मुआवनत के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। ISPR के मुताबिक मरदमशुमारी में 2 लाख एहलकार और अफसर जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। पाक फौज के तर्जुमान ने बताया कि मरदमशुमारी के दौरान भी फोर्सेस ज़र्ब-ए-अज़ब और कराची ऑपरेशन जारी रखेंगी। इधर हुकूमत के मुताबिक मरदमशुमारी के इब्तिदाई नताइज की तैयारियां मई के आखिर तक कर ली जाएंगी, जबकि कौमी इदारे शुमारियात ने मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत देकर मुल्कगीर तरबियती अमल का आगाज कर दिया है। मुल्क में 8 बरस से ज़ेरे इल्तवा छठी कौमी मरदमशुमारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बाद हुकूमत ने हतमी हिकमत अमली तय की थी। 15 मार्च से 2 मरहलों में होने वाली इस कौमी मरदमशुमारी में फौज की तैनाती सूबों की तरजीह पर होगी। आइन के तहत कौमी मरदम और खाना शुमारी हर 10 साल बाद लाजमी कराना होती है। तहम मुल्क के सिक्योरिटी हालात और सरहदों की सूरत हाल की वजह से इस अमल में तवील इल्तवा आया। आखिरी मरदमशुमारी 1998 में हुई थी और इस वक्त मुल्क की मजमूई आबादी 13 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल थी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब मुल्क की आबादी 18 करोड़ से तजावज कर चुकी। 18 बरस पहले होने वाली इस मरदमशुमारी में जो डेटा फॉर्म्स इस्तेमाल हुए वही नई मरदमशुमारी में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इस रिपोर्ट में आपने जाना कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मरदमशुमारी और खाना शुमारी के लिए प्लान की मंजूरी दे दी है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है आज न्यूज के डायरेक्टर न्यूज और सीनियर तज्जियाकार आमिर अहमद खान साहब से। आमिर साहब, इस मामले पर यानी मरदमशुमारी को लेकर बहुत दिनों से बहस चली आ रही थी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी जरूरी है हमारे मुल्क के लिए मरदमशुमारी? जी, मैं इस सेंसस को इस कदर अहम समझता हूँ कि अगर ये साल इंतखाबात का साल भी साबित हुआ तो भी इस साल का अहम तरीन वाक़या मेरे नज़दीक ये सेंसस ही होगा। उसकी वजह यह है कि इसके
इस सेंसस के नताइज जो हैं वो बड़े दूर रस उसके असरात होते हैं। ना सिर्फ वो पाकिस्तान की सियासत को इम्पैक्ट करेंगे बल्कि वो पाकिस्तान की ज़िंदगी के, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर शोबे को इम्पैक्ट करेंगे। आपको याद होगा 1998 में आखिरी दफ़ा सेंसस हुआ, 2008 में उसको दोबारा होना चाहिए था और अब 8-9 बरस के करीब वक्त गुजर चुका है जबकि ये सेंसस नहीं हुआ। इसके फौरी असरात के अंदर अगर आप सियासत को देखें तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबलीज़ का कॉम्पोजिशन बदलेगा, पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज़ का कॉम्पोजिशन बदलेगा, और अगर आप इसको प्लानिंग के एतबार से देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग है वो जिन आदाद शुमार के ऊपर बेस्ड है वो कम से कम भी 17-18 बरस पुराने आदाद शुमार हैं। उन जब नए आएंगे तब हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल से 15-16 साल में नहीं तो कम से कम पिछले 7-8 साल में जो होता रहा है, क्या वो पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के लिए काफ़ी था या नहीं। कौन से वो इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर जिन पर आबादी का दबाव गैर मामूली हद तक है और क्या हुकूमत उन इलाकों पर उस तरह की तवज्जो दे रही है या नहीं है। तो एक तरफ तो ये पाकिस्तान की आइंदा 10 सालों की प्लानिंग के अंदर एक बड़ी एक बुनियादी चीज़ होगी ये सेंसस, और दूसरी तरफ एक तरह से ये पिछले 15-16 बरस से जो हुकूमतें जिस तरह से पाकिस्तान के लिए प्लान कर रही हैं उसका एहतसाब भी होगा। इंतहाई अहम इवेंट है पाकिस्तान के लिए, 31 मार्च से पहले इसको मुकम्मल होना है। अगर ये वक्त के ऊपर हो गया तो इससे बेहतर चीज़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कोई नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये वक्त पर हो जाए तो इससे बेहतर चीज़ पाकिस्तान के लिए कुछ और नहीं हो सकती। आमिर अहमद खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में मरदमशुमारी तो 15 मार्च से होगी, ये आपने जाना। अब चलते हैं कौमी असम्बली में होने वाले झगड़े से जुड़ी एक और अहम खबर की तरफ। कौमी असम्बली का झगड़ा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी की पार्लियामेंट रुकनियत असासों की तफसीलात जमा न कराने पर मुअत्तल होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कई सवालात ने जन्म ले लिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शहरियार आफरीदी असासों की तफसीलात फराहम न करने वाले वाहिद रुकन कौमी असम्बली हैं। ये किसी गली मोहल्ले के नहीं बल्कि कौमी असम्बली के मनाजिर हैं जो गुज़श्ता रोज देखने में आए। कौमी असम्बली में मार कुटाई का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि तनाज़े के मरकजी किरदार शहरियार आफरीदी के हवाले से नया इंकशाफ हुआ है। शहरियार आफरीदी के असासों की तफसीलात जमा न कराने पर रुकनियत ही मुअत्तल थी और इलेक्शन कमीशन भी इसकी तस्दीक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी की रुकनियत 15 अक्टूबर 2016 को असासों की तफसीलात जमा न कराने पर मुअत्तल की गई थी, जो अब तक बरकरार है। इसी मुअत्तली के बाद शहरियार आफरीदी की असम्बली इजलास में शिरकत और तनाज़े में मुलव्विस होने ने कई सवालात खड़े कर दिए। मुअत्तली के बावजूद पीटीआई रुकन कैसे इजलास में शरीक हुए? शहरियार आफरीदी की इजलास में शिरकत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? स्पीकर कौमी असम्बली क्या सारे मामले से लाइल्म थे? अगर थे तो क्यों? अगर स्पीकर रुकनियत मुअत्तली से आगाह थे तो एक्शन क्यों न लिया? शहरियार आफरीदी असासों की तफसीलात जमा न कराने के वाहिद रुकने कौमी असम्बली हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहरियार आफरीदी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन स्पीकर को भिजवा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि शहरियार आफरीदी कानून के तहत कौमी असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते और असासों की तफसीलात फराहम करने पर ही उनकी मुअत्तली खत्म होगी। कौमी असम्बली में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अराकीन में इस तसादुम के बाद आज असम्बली इजलास में मामूल की कार्रवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन तनाज़े के हल और जिम्मेदारों के तयन के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जरूर हुआ और इस इजलास में बताया गया कि पीटीआई के शहरियार आफरीदी पाबंदी के बावजूद ऐवान में पहुंचे, जबकि उन पर हमला आवर होने वाले मुस्लिम लीग नून के मुइन वट्टू थे। असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर अयाज सादिक ने कार्रवाई मुलतवी करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब इजलास के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार करके चलेंगे। इसके लिए उन्होंने तमाम पार्लिमानी कायदीन को अपने चैम्बर में बुला लिया। इजलास में गुज़श्ता रोज की हंगामाराई का वीडियो जायजा लिया गया। अपोजिशन ने सवाल किया कि कशीदा माहौल में शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन बेंचों की तरफ क्यों आए। वीडियो जायजे से अंदाजा लगाया गया। मुस्लिम लीग नून के मुइन वटो ने शहरियार अफरीदी को थप्पड़ मारा, जबकि हंगामा शुरू करने में तहरीक इंसाफ के मुराद सईद का भी किरदार था। शेख रशीद ने वाक़े की जिम्मेदारी स्पीकर के रवैये पर आयद की।
एग्रेसिव हुकूमती बिहेवियर था और जो अब्यूसिव लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई। आप वजीरों की तरफ देख के फैसला करेंगे तो असेंबली खराब होगी। पार्लिमानी कायदीन के इजलास में हुकूमती अरकान ने हंगामे के जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करने के साथ असेंबली कार्रवाई को मुस्बत बनाने के लिए अपनी तजवीज़ भी दी। सारी जमातों को इत्तफाक के साथ इसका मामले का हल करना चाहिए। ऐसा फैसला ना हो जो पार्लियामेंट से बाहर आ जाए। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने तजवीज़ किया कि ईवान का माहौल बेहतर रखने के लिए वाज़ेह मुतय्यन रेड लाइंस तय होनी चाहिए। स्पीकर ने पार्लिमानी कार्रवाई की मोबाइल फोन कैमरे से वीडियो पर पाबंदी आयद करते हुए मीडिया को बताया कि असासों की तफसीलात न देने की वजह से शहरियार अफरीदी की रुकनियत इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर रखी है, लेकिन उनके आने का पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि पीर को इस मामले पर फिर इजलास होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हंगामा आराई के बाद मुलतवी करना रोज का मामूल बन गया है। कभी जाती मसलों पर बदनज़मी तो कभी पार्टी की सतह पर। आज भी असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। पेशावर से देखिए शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामों ने जोर पकड़ लिया और अब तो रोजाना स्पीकर को असेंबली का इजलास हंगामा आराई ही में मुलतवी करना पड़ता है। आज असेंबली के इजलास में ऐसा ही हुआ जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली ने एक दूसरे के कायदीन के खिलाफ खूब नाराबाजी की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नजर सूबाई असम्बली और अपने मुंतखब अरकान असम्बली की तरफ होती है कि वो उनकी तरक्की के लिए कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन असम्बली के इजलास में आजकल अवाम को गालम गलोच और हंगामी ही देखने को मिलते हैं। शहाबुद्दीन, आज न्यूज, पेशावर। अदालत में जारी पनामा हंगामा ने आज नई करवट ले ली है। सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान की हुदैबिया मिल्स के साबिका मुकदमे और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक इसहाक डार के मतरूक एतराफी बयान का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि जजिस के रिमार्क्स में कहना था कि बेगुनाह अफराद मुकदमा लड़ते हैं, मुआफिया नहीं मांगते। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पनामा मुकदमा की समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने शरीफ खानदान में तकसीम होने वाली विरासत और तहाइफ की तफसीलात देने के लिए मोहलत मांगी तो पीर तक का वक्त दे दिया गया। वकील शाहिद अहमद ने वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से दलाइल में कहा कि 1999 में फौजी आमिर ने इसहाक डार को गिरफ्तार करके तहरीर पर उनके जबरदस्ती दस्तखत कराए। ये बयान हल्फी कागज का टुकड़ा था और इसहाक डार आज भी इसकी मुकम्मल तरदीद करते हैं। जस्टिस खोसा ने कहा कि ये बयान कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उन शवाहिद का हिस्सा है जिस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। नैब का रेफरेंस नामुकम्मल तहकीकात पर मबनी रहा और हाई कोर्ट ने मुकदमा को तकनीकी बुनियादों पर खत्म किया। जस्टिस इजाज ने नुक्ता उठाया कि हाई कोर्ट ने बयान मुस्तरद करने के लिए एक रिट पिटीशन पर फैसला कैसे दे दिया। अदालत ने कहा कि इसहाक डार के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब को अपील दायर करनी चाहिए थी। अदालत ने इसहाक डार के एतराफी बयान और माफी मिलने की तारीखें पूछी तो वकील ने कहा कि पहले माफी मिली, एतराफी बयान बाद में रिकॉर्ड हुआ। जस्टिस खोसा ने कहा पहले माफी और फिर बयान होने की भी बहुत अहमियत बनती है। माफी मिलने के बाद तो इसहाक डार मुल्ज़म ही नहीं रहे, बेगुनाह अफराद तो मुकदमा लड़ते हैं, मुआफिया नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर हुदैबिया मिल्स रेफरेंस में इसहाक डार के एतराफी बयान से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा कि देखना है कि नैब ने अपील क्यों दायर नहीं की। जस्टिस खोसा ने कहा कि जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते केस सुनते रहेंगे। फिर मुकदमा की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा मुकदमे में अदालती समाअत के दौरान आज नए पहलू ज़ेरे गौर आए तो बाहर जाकर मीडिया में बयानबाजी करने वाले दोनों फरीकैन ने भी पुराने इल्जामात के साथ कुछ नए वार भी किए। शिकवा करने के लिए एक फरीक की ए और बी टीम मौजूद थी तो दूसरे फरीक की आज सिर्फ बी टीम के अरकान ने जवाबी वार किए। आपको दिखाते हैं। असल मनी ट्रेल सामने आई है।
वो है इसहाक डार वाली। जनरल मुशर्रफ ने पहले एनआरओ दिया, फिर अपना नैब का चेयरमैन लेके आए, ये वाला जो चेयरमैन है, और इससे फिर अपील नहीं करवाई और केस खत्म करवाया गया। आप इसहाक डार साहब के पीछे लग गए हैं। गन पॉइंट के ऊपर किसी चीज से साइन करवाया जाता है, उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। मुबारक हो नवाज शरीफ साहब, आपकी तमाम खरीदो फरोख्त के पीछे कतरी चेहरा नजर आ रहा है। ऐसे खत तो शहजादा सलीम ने भी अनारकली को नहीं लिखे थे। दो प्राइवेट इदारे जो कारोबारी इदारे आपस में बातचीत करते हैं, उसमें स्टेट का मामला इन्वॉल्व नहीं होता, उसको कहना कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, उस अखलाकी लिहाज से भी बददियानती है। ये एक फर्जी ट्रेल है, क्योंकि मनी ट्रेल के लिए रसीदें चाहिए होती हैं। सड़क के उस पार आप 4 इस्तिस्ना लेते हैं और आप कहते हैं ना ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर होनी चाहिए, ना बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर होना चाहिए। 52 करोड़ के तोहफे कोई देता है या कोई लेता है, लेकिन जहां माल मुफ्त होता है वहां दिल बेरहम होता है। KPK के अंदर एहतसाब कमीशन को ताला लगाकर प्रेसिडेंट सेट होती है करप्शन करने वालों को फैसिलिटेट करने की। पूरा LNG सेक्टर उठा के किस तरह से प्रिंस जासिम को दे दिया गया है इन खतों के एवज, एक और स्कैंडल वो आने वाला है। LNG की गुफ्तगू ना करें, उसको चैलेंज करें, इल्जामात ना लगाएं, सबूत दें। पाकिस्तान तब्दील हो गया, कभी इस तरह की तलाशी नहीं ली गई किसी लीडर की। आज तक सारे जो भी इस मुल्क के पावर में होते हैं वो लोग, उनके ऊपर इम्यूनिटी होती है। लॉस एंजलिस कोर्ट की डिक्री निकाल लें आप लोग, एक जुर्म जो साबित होता है 62-63 के नीचे, वो इमरान खान का फेल है। एक ब्रेक के बाद आगे देखिए। कानूनदानों में कानून के बजाय कौन सी जंग छिड़ गई? कहीं मौसम हुआ रंगीन तो कहीं मुश्किलात हुई संगीन। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। लाहौर में वकला की लड़ाइयां अहाता अदालत से कमरे अदालत तक जा पहुंची हैं। जजेस के साथ तल्ख कलामी के बाद अदालत के अंदर वकला के 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पंजाब बार एसोसिएशन के मुताबिक शिकायत मिलने पर मुतालिका वकला के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मजीद बताएंगे तारिक खान। वकला की साइलिन, जजेस और आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की फुटेज मंजर आम पर आती रहती हैं, जिसमें कानून की जुबान में बात करने वाले थप्पड़ों, घूंसों और लातों से बातें करते और समझाते नजर आते हैं। मेंबर पंजाब बार एसोसिएशन फरहाद अली शाह का कहना है कि वकला के खिलाफ कार्रवाई करना एसोसिएशन का हक है, जिसे किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और कई लॉयर्स के लाइसेंसेस जो है ना सिर्फ हमने सस्पेंड किए हैं, उनके लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के अंदर ये हमारा प्रोग्रेटिव है, ये हमारा इख्तियार है लॉयर्स के खिलाफ एक्शन लेना। हम ले रहे हैं, ये इख्तियार हम किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अनस गाजी का कहना है कि नौजवान वकला को अदालतों में पेश होने और दीगर मामलात की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। हमने वकला का सालाना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया कि तमाम यंग वकला को जो है हर साल 2 माह के लिए ट्रेनिंग देगी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने खर्चे पे, और वो उनको लीगल एथिक्स, उनको कॉन्डक्ट, उनको डेकोरम जो है कोर्ट का, और जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी है वो सिखाया जाएगा। वकला रहनुमाओं का कहना है कि वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। दूसरी जानब से तानाजनी या गुस्सा दिखाने पर हालात कशीदा होते हैं। तारिक खान, आज न्यूज, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शाराए कराकरम बंद है, मवासलाती निज़ाम भी मुतासर है। तो उधर दीर और ज़ियारत में बर्फबारी थम जाने के बाद सयाहों ने डेरे डाल लिए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बर्फबारी जारी तो कहीं थम गई है। शदीद बर्फबारी के बाइस गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क से जमीनी और फिजाई राब्ता मुनक़ता है। वादी नीलतन में बर्फ में फंसे चीते को महकमा वाइल्ड लाइफ ने बचा लिया, मगर चीते को शहर लाते हुए बर्फ पर 10 किलोमीटर पैदल चलने पर 6 एहलकारों के पैर खराब हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्तोर में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जुम्मे को भी जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 1 जबकि पहाड़ों पर 10 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिले दीर में कई रोज से जारी बर्फबारी थम चुकी है। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन मकामात पर मौजूद और खूब इंजॉय कर रही है। उधर बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत में भी बर्फबारी रुक गई।
महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 रोज में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। तहम आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड और हजारा डिवीजन में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी